Hey guys, good morning. Welcome back to another class with me, Swastika. And today we are basically going to be discussing key concepts in geography. So, for those of you who don't know what this is, guys, we have already finished like the entire geography book के हम लोगों ने क्या कर लिया है खत्म सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म कर लिए हैं ठीक है so, what we and then after that we have done one round of revision. So, guys, now our main focus is that we pick up key concepts from that book. So, today we would basically be picking up key concepts in geography from the first two chapters because, as you guys know, I really believe that unless you understand the concept. ठीक है हमें कुछ भी नहीं रटना ना हमें ज्योग्राफी में चीजें रटनी है ना हमें सिविक्स में चीजें रटनी है ना हमें कहीं भी जो है वो चीजों का रट्टा लगाना है हमें क्या करना है हमें हर एक जगह हर एक सिचुएशन में जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करना है ठीक है सो अब जो नेक्स्ट 3 क्लासेस होंगी गाइज वो कंप्लीटली फोकस्ड होंगी अंडरस्टैंडिंग पे ठीक है क्योंकि हमने थ्योरेटिकल चीज समझ ली है ठीक है तो अब हमें रट्टू तोता तो बनना नहीं है अब हमें फोकस करना है कि हम चीज को अंडरस्टैंड करें कैसे अंडरस्टैंड करें लॉजिक से अंडरस्टैंड करें अगर हम चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या होता है हमें आंसर में जो है क्वेश्चन पेपर में जो है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती हम वैसे ही आंसर को देखते जो क्वेश्चन को देखते जो है इमीडिएटली आंसर बता देंगे अगर हम लॉजिकली चीजों को समझेंगे सो गाइज this the next 3 classes are going to be completely focused on understanding concepts in a logical manner so you can answer any amount of any kind of question चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओ एंड दूसरी चीज हम क्या करेंगे नेक्स्ट 3 क्लासेस में ज्योग्राफी की हम लोग फोकस करेंगे कुछ की क्वेश्चंस पे ठीक है जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं हम उन पे भी फोकस करेंगे ठीक है so guys welcome back to Unacademy welcome back to another lesson welcome back to the channel let's crack CBSE for class 8 let me tell you a little about myself in case you guys already don't know and are new to the platform so guys I have qualified UGC NET in political science right so this basically means I am eligible to teach as an assistant professor and in what in political science right so guys I have after that done my masters in pol science from Jawaharlal Nehru University I have done my BA honors in political science from Delhi University I'm sure you guys must have heard about JNU you guys must have heard about DU these are very popular universities and some of the best in fact in India so in case you guys want to pursue a future in social science then these are the universities these are the places to be of course, guys, I am very passionate about teaching. I love interacting with my students. I love just talking to you all and learning from you all and just listening to you all. And of course, it's the process is not just about you guys learning from me, but it is also about me learning from you. And more importantly, both of us unlearning together and then learning new things again. Okay, so guys, this was a short brief about me. Welcome to India's largest platform, that is Unacademy. In case you haven't purchased the subscription already, please do go and purchase it. So, with one subscription, you will get a lot of benefits, and these benefits include access to daily live classes where you can chat with your educator, you can engage in discussions, you can ask your doubts, you can answer polls, all the while the class is going on right after this we are basically going to have live tests and quizzes this means that we will evaluate your preparation with our regular mock tests and quizzes and give you a detailed analysis of your performance ठीक है सो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगी इससे क्या होगा आपको क्या मिलेगा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है Next, we have structured courses. Structured courses basically means the difference between YouTube and platforms like Unacademy is that YouTube is meant for the purpose of music streaming and video sharing. ठीक है ये क्या है ये है YouTube
ठीक है। बट यूट्यूब और अनअकैडमी में क्या डिफरेंस है? यूट्यूब एंड अनअकैडमी में डिफरेंस है कि आपको जब हम अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन मेंट है सोली फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग एंड सोली फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग, राइट? सो दिस मीन्स दैट इट्स easier to study and to learn on Unacademy because there are going to be no advertisements. Of course, the entire course is going to be structured in a manner brick by brick, step by step. ऐसा होगा कि आपका जो एंड गोल है CBSE क्लास 8 को क्रैक करने का गोल है, तो ये आप क्रैक करोगे अगर आप हमारी क्लासेस में इंडल्ज करो। उसके बाद गाइस आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन खरीद के आपको क्या मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस। What is this unlimited access guys? It means कि आपके पास अब total and complete freedom है to pick your educator. So not only can you pick your educator, but you can also watch from the comfort of n number of devices, and you will have access to recorded classes. ठीक है? So guys, these are going to be the live classes. They're going to be held live. You are basically going to be taught by top educators. Top educators matlab people who have had 20 plus years of teaching experience, and they love to have fun. They love to teach. They have had the experience of producing top rankers. So you will be studying from these people, so you know you are putting yourself in good hands. After that guys, the syllabus would be getting covered in a comprehensive manner. This basically means math, science, English, social science, हिंदी जो है आपका अच्छे से कवर होगा बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके पे। और सोशल साइंस में लूंगी, सोशल साइंस में हिस्ट्री होगा, पॉल साइंस होगा, सिविक्स और ज्योग्राफी होगा, ठीक है। सो डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। किधर से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल क्लिक करिए, टेलीग्राम ऐप पे देखिए। उसके बाद गाइस सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड क्या है? SWAS10। इस कोड को बिल्कुल याद करिए और अप्लाई करिए। 1 मंथ 6 मंथ्स के लिए नहीं, बट जैसे आप इसको 12 महीने या 14 24 मंथ्स के लिए लेते हैं। कौन सा कोड है मेरा? SWAS10। इस कोड को अप्लाई करते क्या होता है? डायरेक्टली आपके जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? स्लैश डाउन हो जाते हैं। 15,000 से कितना? 13,500। So this means 1 month may you will be basically be paying 1,000 rupees for what? For 5 subjects. So for 5 subjects you will basically be paying 1,000 rupees. This is 12 months and this is 24 months, and my code is this. My code is SWAS10, SWAS10. Okay, so guys, let's get back to the topic of discussion at hand, and this we are going to do in a very quick manner. I have already given you an overview of what we are going to do. अभी हम लोग first 2 chapters में देखेंगे कि important concepts क्या है। हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें बस देखने हैं कि concepts क्या है और हम understand करें कैसे chapter को। फोकस किस पे है? अंडरस्टैंडिंग पे। फोकस किस चीज पे नहीं है? रट्टू तोता बनने में फोकस हमारा नहीं है। हमारा फोकस है कि हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, लॉजिकली उसको समझें। लॉजिक अगर आपको समझ आ गया तो आप क्या कर सकते हो? एनी क्वेश्चन, चाहे वो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा पूरा फोकस इसमें होगा फर्स्ट 1 एंड सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या था? रिसोर्सेस। सेकेंड चैप्टर क्या था? लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स थे और इसमें हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे कुछ की कंसेप्ट्स, ठीक है, इन 2 चैप्टर्स में। और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपसे कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, मोस्ट लाइकली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। इस पे हम फोकस करेंगे, किस पे? MCQ क्वेश्चंस पे। सो गाइस, जब हम ये MCQ क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपना जो है ना वो लिखते रहिए कि आपके कौन सा कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। और एंड में आप नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो पे कि आपके कितने मार्क्स है। अगर 20 क्वेश्चंस है तो 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। Okay, let's move on guys. Okay, obviously the name of the chapter is resource, and we have done this several times. So every time somebody says कि resource का chapter का नाम है, but resource actually है क्या? ठीक है। सो गाइज, रिसोर्स कोई भी वैसी चीज हो सकती है जो एक नीड को सेटिस्फाई करे। अगर आपकी नीड है, आपका गला खराब हो गया एंड आपको गला ठीक करने के लिए एक दवाई की जरूरत है, तो वो जो मेडिसिन है वो क्या है? वो रिसोर्स है,
ठीक है। सो गाइज एनीथिंग, ये सब्सटेंस है, ठीक है, इस सब्सटेंस का कुछ यूटिलिटी है, इस सब्सटेंस की कुछ यूटिलिटी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रिसोर्स। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड और देखा था जो मैंने स्लाइड डाली भी नहीं है, वो है पेटेंट। पेटेंट वर्ड हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने एक नई इन्वेंशन करी। आप मेरा नाम स्वास्तिका है और मैं एक दिन बैठी हुई थी एंड सडनली मेरी दिमाग की बत्ती जली। बत्ती जली तो क्या हुआ, मैंने इन्वेंट करा कि मैं मिस्ट से जो हूँ, मिस्ट पता है ना हमें क्या होता है, मिस्ट से जो हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हूँ। तो ये आइडिया ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है बट मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस आइडिया को पेटेंट करा। So that is what we call a patent. And what is a resource? Resource is anything that can be used to satisfy a need. And what is utility? Utility is anything that makes an object or a substance a resource. जो भी चीज किसी भी object या substance को एक resource बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, utility. Are we clear? Okay, let's move on. So guys, now we understand what a resource is, right? अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा और ये जनरली क्वेश्चन आता है कि डिफाइन अ रिसोर्स, तो हमें क्या बोलना है, हमें ये बोलना है एनीथिंग दैट satisfies the need, right? Anything that satisfies a need could be maybe a medicine or maybe sunlight, because without sunlight none of us would actually be there, or anything that is catering or satisfying some kind of a need is something we would call a resource. The second thing we have learned is the word patent. Patent क्या होता है कि आपके दिमाग की बत्ती चली, नया आइडिया, नया इन्वेंशन, एंड आपने उसको क्या कर दिया, पेटेंट कर दिया, ताकि आपके पास क्या है, उसकी उसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मैम एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। गाइज एक्सक्लूसिव मतलब कि इस आइडिया पे जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ठीक है। कोई और आपके आइडिया को अगर यूज करे, अगर किसी को भी अपने एकेडमिक जर्नल में या किसी मशीन में जो है आपका आइडिया यूज करना है, आइडिया क्या था कि मिस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो किसी को भी अगर ये करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सक्लूसिवली उसको क्या करा है, पेटेंट करा है। सो गाइस व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors that lead to that convert substances into resource? substance क्या होता है, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज। अब इस सब्सटेंस की हम कुछ यूटिलिटी बना दे तो ये सब्सटेंस क्या बन जाता है, एक रिसोर्स। सो गाइस टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम मतलब वक्त, टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। तो हमने ये देखा सब्सटेंस टू रिसोर्स जो कन्वर्जन हो रही है वो किन दो चीजों से हो रही है, वक्त से और टेक्नोलॉजी से। तो हम इसको क्या करेंगे, एस टू आर कैन ओनली बी गॉन थ्रू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज व्हाट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। एंड ऑफ कोर्स हमें तो पता ही है कि पीपल क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है गाइस? ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स आर द अल्टीमेट रिसोर्स। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो हम लोग नेचर से जो भी चीजें आती हैं, नेचर से अगर हमें एक रबर प्लांट मिलता है तो हम इस रबर प्लांट को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जो है एक किताब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो गाइस लोगों के जो आइडियाज होते हैं, हमारी जो इन्वेंशंस होती हैं, हमारी जो डिस्कवरीज होती हैं, वो किस चीज को लीड करती है, क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस को, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स मोर एंड मोर resources. What creates more and more resources, guys? Again, important point. People create more and more resources because it is their ideas, it is their creations, it is their inventions and their discoveries that lead to some kind of an intervention. Okay, so guys, resources are classified into two parts. Natural resources. अब हम बस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सिर्फ क्लास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड फिर इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो ऑब्वियसली गाइस 3 टाइप के बोले, एक हमने बोला नेचुरल, एक हमने बोला ह्यूमन मेड, एक हमने बोला ह्यूमन। तो नेचुरल तो जैसे बिल्कुल समझ ही आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, नेचर से आएंगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। नेचर से हमें क्या मिलता है गाइस, नेचर से हमें मिलता है एयर मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, मिनरल मिलता है, लेक्स मिलता है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है समझना, या कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली जूझना पड़ रहा है। इट इज सो सेल्फ अंडरस्टूड दैट नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो सीधा किधर से आते हैं, नेचर से आते हैं। नेचर में हमें क्या मिलता है गाइस, नेचर में हमें मिलता है धूप अच्छी मिलती है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनको और फर्दर क्लासिफाई करते हैं किन बेसिस पे, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये 2 मार्कर आता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कैसे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, आप उनको क्लासिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं। तो एक तरीका है कि हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे क्लासिफाई करें, एक तरीका है हम ओरिजिन पे क्लासिफाई करें, एक स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज ऑब्वियसली लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज मतलब कि कितना वो रिसोर्स जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, क्या वो एक एक्चुअल रिसोर्स है या एक पोटेंशियल रिसोर्स है। डेवलपमेंट मतलब कि हम क्या इसको अभी यूज कर रहे हैं या हम इसको आने वाले 100 साल में यूज करेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। और किस पे करते हैं, ओरिजिन पे करते हैं। ओरिजिन मतलब कि ये आया कहाँ से है। और किस पे करते हैं, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, की हमारे पास क्या ये बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड स्टॉक में, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या हमारे पास इसका स्टॉक कम है। ठीक है, सो गाइस नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बोला वी आर गोइंग टू क्लासिफाई यू, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई यू ऑन द basis of development, and on the basis of development we are going to classify you into 2 parts. One is going to be a potential resource and one is going to be an actual resource. So an actual resource is going to be anything where we know the quantity. क्वांटिटी मतलब हमें पता है कि रूर रीजन इन जर्मनी में हमारे पास इतना डिपॉजिट ऑफ कोल है। ये क्या है, ये नोन है, ये साइंटिफिक एस्टिमेट है, ये हमें पता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इतना तो पता है कि हमारे पास इतना कोल जर्मनी के इस एरिया में है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या हुआ गाइस, पोटेंशियल रिसोर्स हुआ कि हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो अब यूज होगा, फ्यूचर में यूज होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सफिशिएंट नहीं है उसको यूज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूरेनियम इन लद्दाख। Okay, so guys, because we are doing a very quick revision, we are not going to waste a lot of time. Next thing is going to be origin. अब हमने बोला कि natural resources कैसे classify होते हैं, एक development पे क्या हो गया, actual and potential। फिर हमने बोला origin पे क्या हो गया, biotic and abiotic। बस आपको ऐसे ऐसे जो है ना ये चार्ट याद रखना है। ठीक है, ये चार्ट याद रखोगे आप पूरा चैप्टर लॉजिकली समझ जाओगे। यही कंसेप्ट है, यही चीज आपको हर पेपर में बार बार लिखनी है। ठीक है, हमने बोला ओरिजिन पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, बायोटिक या एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया। नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में हमें डिफरेंस पता है, तो हमें बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में डिफरेंस पता है। ठीक है, so biotic is going to be living, which is going to include plants and animals. Next classification is going to be renewable and non-renewable. रेन्यूएबल मतलब वो जल्दी से रेन्यू हो जाते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी क्या हो गई, इसके एग्जांपल्स हो गए। क्यों, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड। धूप हमारे पास अनलिमिटेड है, हवा हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है, और ये ह्यूमन एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कैसे बनते हैं, एक डायनासोर था 3,000 साल पहले जो मर गया, फिर उसके ऊपर एक लेयर आई अर्थ की, फिर सेकेंड लेयर आई, फिर थर्ड लेयर आई, फिर 3,000 सालों में टॉप मोस्ट लेयर आई। तो अब जब ये 3,000 साल तक डायनासोर का जो मरा हुआ स्किन है वो अर्थ के नीचे रहा, तो वो क्या बन गया, एक फॉसिल फ्यूल बन गया। ठीक है, so physical factors like terrain, climate and altitude affect the distribution of natural resources, but obviously इसका जो स्टॉक है गाइस वो क्या है, वो लिमिटेड है।
लिमिटेड स्टॉक क्यों है गाइस? क्योंकि एक ही डायनासोर है ना जो मरा है, मतलब हर 3000 साल में तो डायनासोर्स मरते नहीं रहेंगे. सो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. Now on the basis of distribution we say it is ubiquitous. Ubiquitous मतलब हर जगह हमें मिलता है, हवा हमें हर जगह मिलती है. Localized मतलब कुछ कुछ जगहों पे मिलता है, जैसे कॉपर एंड आयरन ओर. ठीक है गाइस, अब मैं फटाफट एक बार आपको और फन तरीके में बताती हूँ. ठीक है, कि हमने समझा क्या है. हमने समझा है कि हमारे पास क्या है, 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं. जब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो किन पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल. एक्चुअल मतलब कि इतना हमें क्वांटिटी उसका पता है और इतना हम उसको ऐसे ऐसे फिर यूज कर सकते हैं. पोटेंशियल मतलब कि हमारे को ना क्वांटिटी पता है ना कुछ पता है, बट हमें ये पता है कि 100 साल में हम इस रिसोर्स को ऐसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब after that, after development we have, what did we have after development, what did we have? I am starting to, it's starting to miss out of my head because I'm having a headache. So guys, after development we have origin. ठीक है, origin मतलब कहाँ ओरिजिनेट करता है. ये किस पे हो गया, बायोटिक एंड ए बायोटिक. इसका क्या डिफरेंशिएशन हो गया, या तो ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है. फिर जो हमने थर्ड चीज बोली वो हमने बोला कि इसका हमारे पास स्टॉक कितना है. ठीक है, तो स्टॉक में दो एरियाज में फिर डिवाइड हो गया, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल कौन से हो गए गाइज, रेन्यूएबल वो हो गए जो रेन्यू हो जाते हैं, जो अर्थ में बहुत है. ठीक है, नॉन रेन्यूएबल कौन से हो गए, जो बार बार रिप्लेनिश नहीं करते. ठीक है. फिर लास्ट हमने इसको क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्या है, दो क्लासिफिकेशन है. एक होता है यूबिक्विटस, मतलब हर जगह हमें मिल जाता है, जैसे हवा हमें हर जगह मिलती है. एक होता है लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मतलब कि कोल जो है वो हमें किन्हीं एरियाज में मिलता है, वो हर जगह हमें नहीं मिलता. ठीक है, तो ऐसे हमने अंडरस्टैंड करा नेचुरल रिसोर्सेज को. ये 4 उसकी हमने क्लासिफिकेशंस देखी. और हर पेपर में इस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको बस ये टेबल अगर समझ आ गया तो आपका ये चैप्टर क्या है, डन है. ये टेबल क्या कहता है, ये टेबल कहता है 3 तरह के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन पे हम अभी आएंगे, बट नेचुरल में हमने कैसे क्लासिफाई करा, 4 तरीकों से. डेवलपमेंट मतलब वो डेवलप हो रहा है रिसोर्स या फ्यूचर पोटेंशियल है. ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं गाइस? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं कि अगर आपको एक मेटल है, ठीक है, मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करा, तो मेटल को आपको कन्वर्ट करना है मशीनरी में. तो वो मेटल खुद तो अपने आप बन नहीं जाएगा ना मशीनरी में, कोई ह्यूमन आएगा, ह्यूमन कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ फैक्ट्री में डालेगा, तो वो क्या बनेगा, वो मशीन बनेगा. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ह्यूमन रिसोर्स होता है क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल. इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ह्यूमंस की लाइफ इंप्रूव नहीं करोगे, ह्यूमंस की लाइफ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर देके. ठीक है, अगर आप इनकी लाइफ इंप्रूव नहीं करोगे तो आपकी खुद की लाइफ इंप्रूव नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे ह्यूमन रिसोर्सेज पे उतना जो है आपको आपके लिए ही बेटर होगा. ठीक है, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट. अगर फार्मर आपको फूड ग्रेन्स ना दे, साइंटिस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट ना करे, तो आप एज एन एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. सो गाइज, ये सब देख के हमें समझ आता है कि रिसोर्स कंजर्व करने की जरूरत है. अगर आप नहीं करोगे तो वो फ्यूचर जनरेशन हमें यूज ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि हाँ, हमें डेवलप करना है, जो अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसको डेवलप करना है, बट गाइस उसको ऐसा डेवलप करना है कि जो आने वाली जनरेशन है ना, फ्यूचर जनरेशन, वो भी थ्राइव कर पाए. ठीक है, सो दैट हैज टू बी हाउ वी वांट टू डेवलप.
and so we want to conserve our resources, and we don't want to develop in a manner that is going to be bad for the environment. We don't want to develop in a manner that is going to be horrible for human beings. We want to develop in a manner that is going to be good for everyone, and that is what we call sustainable development. So UN has also come up with what? Sustainable development goals that recognize, अंडरस्टैंड एंड एपिटोमाइज द टॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी को क्या चाहिए वो एसडीजीज हमें बताते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेस। हमें इस तरह से करना है कि हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेस सस्टेनेबल हो, हमारा डाइवर्सिटी मेंटेन हो, एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। ठीक है, ये बस चैप्टर है, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिस्पेक्ट एंड केयर, मिनिमाइज डिप्लीशन, अर्थ की वाइटलिटी, ये सब हमें क्या रखना है, दिमाग में रखना है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हमने बहुत क्विकली इसमें रिवाइज कर लिया है चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया है, 3-4 चीजें हैं, एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ जस्ट सो माय स्टूडेंट्स आर क्लियर। रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। रिसोर्स क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स पे हमने ज्यादा स्टडी करा है। नेचुरल रिसोर्स को हमने क्लासिफाई करा है 4 पार्ट्स में, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, स्टॉक एंड अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने कैसे क्वालिफाई करा हुआ, एक्चुअल या पोटेंशियल। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, ए बायोटिक। स्टॉक के बेसिस पे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। डेवलपमेंट के बेसिस पे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। बस ये जब हमें याद हो गया तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बाद हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व resources. So if we know these two things, our chapter is basically done and dusted. So guys, let's have a look at the questions and let's see that if with these 2 pointers, one this table and answering these 2 questions, if we can actually answer some of the MCQs. ठीक है, so the question is which one of the following does not make a substance a resource. हमने क्या डिस्कस करा था, substance क्या बनता है, resource बनता है। कब बनता है, जब ऑब्वियसली वो कुछ उसमें जो है वो कुछ वैल्यू या यूटिलिटी ऐड करता है ना। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है यूटिलिटी, बी वैल्यू, सी क्वांटिटी। आई विल गिव यू गाइस 10 seconds टू थिंक एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके गाइस, ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज कि डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। हमें पता है कि सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है, जब उसमें कुछ यूटिलिटी, उसकी कुछ यूटिलिटी होती है या कहीं वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, सो सी इज बेसिकली गेटिंग कैंसल्ड आउट, वी डू नॉट care about the quantity is immaterial. Moving on, which of the following is a human made resource? Human made क्या होता है guys? ऑप्शंस आर मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बी स्प्रिंग वाटर, सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, हमने डिस्कस करे थे 3 टाइप के। नेचुरल रिसोर्स होता है जो नेचर प्रोवाइड करती है। नेचर क्या प्रोवाइड करती है, लेक्स प्रोवाइड करती है, नेचर एयर प्रोवाइड करती है, नेचर सन प्रोवाइड करती है, नेचर ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड करती है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है जो हम लोगों ने नेचर से लिया है, कन्वर्ट करा है थ्रू अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड नाउ दिस हैज बिकम समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट बट समथिंग दैट इज ऑब्वियसली अ डेरिवेशन ऑफ नेचर. So now the question is which one of the following is a human made resource? So your options are medicines to treat cancer, spring water, tropical forests. I'll give you guys 5 seconds. You can राइट योर आंसर एंड बाद में आप फिर चेक कर सकते हो आपके आंसर सही है, एंड नीचे कमेंट करिए आपके कितने आंसर सही हुए। सो गाइस, ऑब्वियसली द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो नेचर प्रोवाइड करता है ना। मेडिसिन कौन बनाता है, मेडिसिन ह्यूमन बनाता है। ठीक है, ओके, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे करते हैं। बायोटिक होता है ओरिजिन के बेसिस पे, और एक ए बायोटिक होता है। बायोटिक का क्या मतलब होता है, इज इट डिराइव फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, इट इज मेड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, इट इज डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सो गाइज, आई गिव यू 10 seconds टू थिंक ऑफ एन आंसर। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम लिविंग बींग। सो आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सम यूटिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, इनमें से कौन सी चीजों की कुछ यूटिलिटी है? ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तीनों चीजों की यूटिलिटी है, पानी की यूटिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी होती है, वेजिटेबल की यूटिलिटी होती है, तो तीनों चीजों की यूटिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, इनमें से कौन कौन सो की एक इकोनॉमिक वैल्यू है? लैंडस्केप की, होम रेमेडीज की, मेटल्स की, नॉन ऑफ दीज की। सो गाइज, लैंडस्केप की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, इट्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल लैंडस्केप इज अ वेरी इंटेंजिबल थिंग, सो इट डजंट रियली हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। होम रेमेडीज की भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है जब तक आप इस होम रेमेडी को पेटेंट ना कराओ। अगर आप इस होम रेमेडी को पेटेंट करवाते हो एज योर आइडिया, एज योर इन्वेंशन, देन इट कैन स्टिल हैव इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स की वैल्यू होती है, यस, metals have value, metals have economic value, because you can sell it in the market and you would get some kind or cash in return. So yes, they have an economic value. The basis of classification of resources are level of development, origin, stock and distribution. So guys, ये तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस करा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किन 4 पैरामीटर्स पे करते हैं, तो 3 तो उनमें से यही लिखे हुए हैं, सो ऑप्शन डी इज ऑफ कोर्स राइट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज या पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पे हम करते हैं बायोटिक और ए बायोटिक। स्टॉक के बेसिस पे हम करते हैं रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? यूबिक्विटस और लोकलाइज। सो ऑल ऑफ दीज प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So guys, that was it for the first chapter. We discussed the most important key concepts in the shortest amount of time, and then we saw that after knowing those key concepts, we can basically answer any and every question that the examiner can derive from there, right? So that is the interesting thing about studying with me, about learning with me, that we are very focused. Once we have covered the theoretical aspect of the chapter, we are extremely focused on getting very good marks. So guys, the strategy of getting good marks is to focus on things that matter. If you focus on topics and things that don't matter, then that is going to be problematic. ठीक है, so obviously the end goal is to get good marks. Good marks can be gotten only if you focus on things that matter. So that is what we call strategy in life, guys. Strategy का क्या मतलब होता है? Strategical thinking का. Strategical thinking मतलब कि आप का अगर end goal है कि मेरे को class 8 CBSE में 100% चाहिए, ठीक है, तो आप उन्हीं चीजों पे फोकस करो जो आपको 100% दिला सकती हैं, ठीक है। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ के कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज टॉपिक है, ठीक है, और आप रिसोर्सेज में पढ़ना स्टार्ट कर दो फोटोवोल्टेइक सेल्स एंड सनलाइट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट डोंट मैटर, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू गेट द गोल. So first thing we have to keep in mind is our goal. Once we know the goal, the second thing we have to do is to focus on things that matter and that help us reach that goal. ठीक है, so that is what we call strategic thinking, and in my classes we are only going to focus on strategic thinking. How are we going to focus on strategic thinking? We are going to focus on strategic thinking by focusing a lot more on key concepts. Key concepts are concepts that are going to fetch you very good marks. ठीक है, सो हमारा फोकस ही ये रहेगा. जब हमने एक बारी थ्योरी पढ़ ली, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद हमें रट्टू तोता नहीं बनना. उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है. So guys, let's move on. With this motivation, let's move on to the second chapter and let's find कि इसमें हम
कैसे लर्न कर सकते हैं जो बहुत ही इजी हो, ठीक है। सो द सेकेंड चैप्टर इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं हो रहा गाइस, इस पूरे चैप्टर में एक एक पेज डेडिकेटेड है आपकी एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक पे। जो टॉपिक है वो यहाँ मेंशन्ड है, एक पेज आपका लैंड पे डिवोटेड है, एक सॉइल पे डिवोटेड है, एक पानी पे डिवोटेड है, एक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे डिवोटेड है। सो हर एक चैप्टर में क्या हो रहा है, जैसे लैंड आपका चैप्टर है तो लैंड में क्या हो रहा है, वो थोड़ा आपको लैंड के बारे में बता रहा है कि लैंड क्या है, यूज ऑफ लैंड क्या है। फिर आपको वो बता रहा है कि हम क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लैंड यूज, ठीक है। सो पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि लैंड क्या है, उसका यूज क्या है, मोटिवेशन क्या है लोगों का। फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं, इस रिसोर्स को ऐसे यूज कर रहे हैं कि ये रिसोर्स क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज हमें आपको फिर ये बता रहे हैं कि जब हमें ये प्रॉब्लम आ ही रही है, जब हम लैंड डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं या सॉइल डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं या वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट then we identify the problem and then we find out solutions. So guys, every time you write an answer in geography that is related to this topic, we are going to focus on three things. First thing we have to know is that what is द टॉपिक, ठीक है। पहले हमें देना है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई लैंड इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू वी यूज इट एंड व्हाई इज इट जस्ट सो सिग्निफिकेंट एंड सो इम्पोर्टेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर then we can talk about the importance of water. We can mention that even though there are oceans and there is water everywhere around us, but it is all saline water that is not fit for human consumption. Only 1% of the fresh water is fit for human consumption, that is in accessible areas, ठीक है। तो हम पहले ऐसा ऐसा एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर दूसरी चीज हम कहते हैं कि नहीं हमें ना बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लाइफ में। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। लोग लैंड को डिग्रेड कैसे कर रहे हैं? एक्सपैंड कर करके। एक्सपैंड कैसे करते हैं लोग? एक्सपैंड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो हमारी आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनता है, वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। वो इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज कर रही है लैंड की, हमें और घर चाहिए, हमें और खाना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है गाइस जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज हमें क्या लिखनी है आंसर में? तीसरी चीज हमें लिखनी है कि जब ये हम प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं तो हम इस प्रॉब्लम से जूझे कैसे, हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या निकाले, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें एक साथ एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ कलेक्टिव, इन अ कलेक्टिव मैनर, ठीक है। हम लोग सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाउ डू वी कंजर्व लैंड, how do we conserve soil, how do we conserve water, how do we conserve natural vegetation. So guys, these are the three things that we are going to focus on. So let's start off. So obviously guys, अब ये क्विक रिविजन ही होगा। लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, वो जगह जगह पे अलग अलग होता है। क्यों होता है जगह जगह पे अलग अलग? क्योंकि 90% ऑफ जो आबादी है वो कहाँ रहती है? 30% लैंड एरिया में। ये अर्थ है, 90% लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ इतनी सी जगह में, और बाकी क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्यों? बिकॉज ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज हैबिटेबल गाइज। अब भारत इतना बड़ा देश है बट आप हर जगह थोड़ी रह सकते। हिमालयाज में आप नहीं रह सकते, जो एकदम नॉर्थ ईस्ट के एकदम कोवेटेड पार्ट्स है वहां पे आप नहीं रह सकते। सिमिलरली अंटार्कटिका में आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो एक्सेसिबल ही नहीं है, वहाँ इतनी ठंड है, इतनी गर्मी है, इतनी पहाड़ियां, इतने स्टीप स्लोप है कि आप वहां रहना ही नहीं चाहोगे। तो क्या है, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि it is because we have very little of accessible land where we can stay. So the reasons why some places are very populated and some places are not populated is because the not populated places have rugged topography. अब बहुत ऊपर पहाड़ चढ़नी पड़ेगी तो किसी का लाइवलीहुड वहां नहीं कट सकता ना। या लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर, जहाँ पे पानी आता रहेगा तो वहां लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज क्या होते हैं? प्लेन, जैसे दिल्ली क्या हो गया? प्लेन हो गया। रिवर वैलीज हो गया। दीज लैंड्स आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है।
अब हम लोग लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक प्राइवेट होता है, एक कम्युनिटी होता है। प्राइवेट तो जैसे हमें नाम से ही समझ आ रहा है वो किसके लिए हो गया, एक इंडिविजुअल के लिए हो गया। एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, प्राइवेट लैंड चाहिए। कम्युनिटी मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये क्या हो गया, जैसे आपका पार्क हो गया, आपका स्ट्रीट हो गया। प्राइवेट क्या हो गया, आपका पर्सनल घर हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिटी लैंड। अब हमें पता है लैंड एक्सपेंशनिज्म क्या होता है गाइस। लैंड एक्सपेंशनिज्म इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज कि लोगों की जो जनता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें ज्यादा घरों की जरूरत है। ज्यादा घर कब बनेंगे, जब हम ज्यादा एरिया लैंड जो है उस पर कब्जा कर सकते हैं, जब हम और पेड़ पत्ते काटे और उसको एक कॉन्क्रीट जंगल बना दें। अब आप दिल्ली की हालत देखो, पहले इतने पेड़ पत्ते थे, अब हम क्या बन चुके हैं, अ कॉन्क्रीट जंगल। What is a concrete jungle, guys? A concrete jungle is a place where we see only buildings, we see only factories, we see only and only steel laden places. ठीक है, सो ये जो है ये हम सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं देख रहे, बल्कि अब हम ये एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एरियाज में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइस, बहुत दिक्कत आती है, लैंड डिग्रेडेशन होती है, लैंडस्लाइड होती है, सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। ऑब्वियसली जब आपको बहुत सारे घर कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे तो आपको बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। वो पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। वो पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड क्यों होगा, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो इजीली स्लाइड डाउन कर देंगी स्लोप्स के। सॉइल इरोजन क्यों होगा, क्योंकि जब पानी ऊपर से तेज आएगा तो वहां कोई ट्रीज नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे जो उस पानी का फ्लो रोक सकते हैं, तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा गाइस। सरफेस रन ऑफ क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। डिजर्टिफिकेशन क्यों होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा क्योंकि जितने भी पेड़ थे आपने उस जगह पे काट दिए, तो अब वो क्या बन गया, एक डिजर्ट बन गया, या जैसे मैं कहना चाहती हूँ एक कॉन्क्रीट जंगल बन गया। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें समझ आ गया कि लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ये समझ आ गया कि हम क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम इसको कंजर्व कैसे करें। तो गाइज ऑब्वियसली अगर आप एक जगह के सारे पेड़ काट दोगे और वहां बिल्डिंग्स खड़ी कर दोगे तो यू आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना। अगर आप कॉम्पनसेट नहीं करोगे, अगर आप पेड़ों को काटती रहोगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, फिर तो हम भी मर जाएंगे, फिर हमारा एनवायरमेंट कैसे सेव होगा, है ना। तो अब हमारा पॉइंट है कि जितने पेड़ हमने काटे हैं ना, उतने पेड़ों को हम अलग अलग जगहों पे उगाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। अगर हम एफॉरेस्टेशन पे फोकस करेंगे और पेड़ उगाएंगे तो हम लोग एक तरह से इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर को क्या करना है, रेगुलेट करना है इसकी यूज को। केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर को क्या करना है, रेगुलेट करना है। इसको हम रेगुलेट क्यों करना चाहेंगे गाइस, वी वांट टू रेगुलेट इट बिकॉज इफ वी पुट लाइक अनचेक्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल, then that would essentially lead to a situation where the soil quality is getting extremely bad. Obviously we will have to check overgrazing and we will have to reclaim land. So these are some of the ways we can conserve it. Let's move on to the second thing which is soil. Soil हमें पता है क्या होता है, thin grain substance। ठीक है, उसमें क्या होता है, soil की composition में organic matter होता है, फिर क्या होता है, minerals होते हैं, फिर क्या होता है, weathered rocks होती है। अब जो भी डिटेल में समझना चाहता है ये एक एक चीज क्या है, वो प्लीज मेरी पहले की वीडियो देख लो, हमने बहुत डिस्कस करा है, एक्सटेंसिवली डिस्कस करा है। इस वीडियो में बस हम क्विक रिविजन की कंसेप्ट्स पे फोकस करते हुए और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो गाइस सॉइल में क्या होती है, लेयर्स होती है, एक टॉप सॉइल होता है, एक सब सॉइल होता है, ये सेकंड वाली, फिर थर्ड मतलब वेदर्ड रॉक और लास्ट मतलब पेरेंट रॉक। फैक्टर्स क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, नेचर ऑफ, ये पता होना चाहिए गाइस, ये आता है आपका 2 मार्कर, ये याद कर लो। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, आप देख सकते हो। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है, कलर, टेक्सचर, केमिकल। क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल। रिलीफ मतलब ऑल्टीट्यूड। फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम मतलब थिकनेस कितनी है। ठीक है, सो गाइज ऑब्वियसली जो सॉइल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बट इट फेसेस अ लॉट ऑफ डिप्लीशन, इट फेसेस अ लॉट ऑफ इरोजन बिकॉज ऑफ बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, एक तो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर हम हर जगह पेड़ काट देंगे तो क्या
सॉइल की क्वालिटी तो खराब होएगी ना, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। या अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे, अगर हमारे पास कैटल है और इस कैटल को हम ज्यादा खाने दें सॉइल को, तो क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सॉइल खत्म हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूज करोगे क्रॉप्स ग्रो करते हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को, तो काफी प्रॉब्लमैटिक चीज होगी। नेक्स्ट इज रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स भी होंगी। रेन वॉश मतलब कि बारिश जब होती है गाइस, बारिश होएगी तो वो सारा जो सॉइल का टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर उसकी सबसे अच्छी लेयर होती है, उस लेयर को ले जाएगी। ठीक है। क्यों, और इजी क्यों हो जाएगा ले जाने का, बिकॉज इस एरिया में ट्रीज भी नहीं होंगे। So these are the factors that lead to soil degradation. So now the main part of this chapter is that how डू वी कंजर्व सॉइल, एंड इसकी मैंने सारी स्लाइड्स अटैच करी है। हमें काफी कुछ करना पड़ेगा अगर हम सॉइल को कंजर्व करना चाहते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग मतलब आपकी जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, आप इन प्लांट्स के बीच में जो है ना स्ट्रॉ डाल दो या ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो मॉइस्चर है और जो वाटर रिटेंशन है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्चिंग। सेकेंड इज कॉन्टूर बैरियर्स, मतलब स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। Trenches are made in front of barriers to collect water. So stone, grass and soil के हम barriers बनाते हैं, ये भी हमने extensively discuss करा हुआ है वीडियोस में, आप देख सकते हो। अभी हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। रॉक डैम्स हैं, पाइल अप करते हैं, क्या करने के लिए, फ्लो ऑफ वाटर को स्टॉप करने के लिए। फिर क्या होता है, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, उससे क्या होता है, रन ऑफ डिक्रीज करता है। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग मतलब ऑल्टरनेट रोज पे हम अलग अलग क्रॉप्स, एक में हम वीट कर रहे हैं तो एक में हम मेज करेंगे अलग अलग टाइम पे, टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कॉन्टोर फ्लोइंग मतलब फ्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। Shelter belts in coastal and dry regions, row of trees planted to check wind movement to protect soil cover. So guys, those were the things. Now let's talk about water. Water जो है, water everywhere but not a drop to drink. The reason for that is that 2/3 of the earth is covered with water, but most of this water is saline. उसमें इतना salt content होता है कि वो human consumption के लिए fit ही नहीं है। फ्रेश वाटर कितना होता है, 2.7%। 2.7% में से 1.7% जो है वो इनएक्सेसिबल एरियाज। इनएक्सेसिबल एरियाज मतलब अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। सिर्फ 1% वाटर है जो हम ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। सो वाटर साइकिल क्या होता है गाइस, वाटर साइकिल मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वाटर का फॉर्म चेंज करता है, वाटर फॉर्म चेंज करता है गैस से लिक्विड में टू इवन सॉलिड। ठीक है। सो थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, थ्रू प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन, दस वाटर रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन। वो बस फॉर्म चेंज करता रहता है बट उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट। अब ऑब्वियसली गाइज हमारे पास वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा बढ़ के होगी। क्योंकि सिर्फ 1% वाटर अवेलेबल है हमें। ठीक है, सिर्फ 1%। और ये 1% किसके लिए है, 100% ऑफ पॉपुलेशन। 100% ऑफ पॉपुलेशन मतलब ये पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज कर रही है। 1804 में कितने लोग थे, 1 बिलियन। 155 ईयर्स में कितने हो गए, 3 बिलियन। और 1999 में कितने हो गए, 6 बिलियन। सो हमारा पॉपुलेशन क्या कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है गाइस। बट पानी कितना है, पानी उतना ही कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली क्या होगी, स्कार्सिटी होगी। ठीक है, स्कार्सिटी इसलिए भी होगी क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं पानी को और हम कंटेमिनेट करते हैं वाटर सोर्सेज को। वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कैसे करते हैं कि अगर हमारा ग्राउंड वाटर है तो हम इतना ज्यादा डिग डीप करते रहते हैं कि ग्राउंड वाटर जितना होता है उसका लेवल ही नीचे चला जाता है। और कैसे कंटेमिनेट करते हैं, हमारी जो सारी गंदगी होती है उसको हम कहाँ फेंकते हैं, वाटर बॉडीज में। तो ऑब्वियसली पानी तो गंदा हो गई। अब आइडिया है कि वाटर को कंजर्व कैसे करें, तो कुछ कुछ हमने इसके तरीके सोचे हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज कि हम और वाटर को हार्वेस्ट करें। इसको भी हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस करा हुआ है। इससे क्या होगा, सरफेस रन ऑफ प्रिवेंट होगा। हम लोग स्प्रिंकलर्स लगाएं जो जगह जगह इरिगेशन करें।
ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वेज गाइस, ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर, ये सब हमें करना है. ठीक है. सो वाटर खत्म हो गया, इसके बाद हम फोकस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो गाइस, इसमें सबसे बड़ी बात हमें क्या समझनी है कि तीन स्फेयर्स हैं. लिथोस मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब पानी, एंड ये एटमॉस मतलब एयर. और इन तीनों के जो बीच का इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में क्या है? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है क्या? लिविंग बीइंग्स. ऑन व्हाट? ऑन सर्वाइवल. so there has to be an ecosystem. ठीक है. सो गाइस, वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर. ठीक है. वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ मतलब बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ मतलब इंसेक्ट्स, इवन एक्वेटिक. So it doesn't matter if they are small, if they are big, if they are vultures who basically eat scavenge, or if they are like, whatever. So wildlife is going to be animals, big, small, thin, fat, whatever. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन मतलब आपका ये जो प्लांट्स होते हैं, घास फूस, मतलब आपके फॉरेस्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड हो गए. फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड पेड़ होते हैं. ग्रासलैंड क्या होता है? जहाँ ग्रास होता है, मतलब प्लेन एरिया हो गया. स्क्रब्स क्या होता है? डेजर्ट में आपको स्क्रब्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो हर जगह ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है गाइस नेचुरल वेजिटेशन? ऑब्वियसली जो जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा, वहां ज्यादा पेड़ होंगे. ठीक है. जहाँ पे ड्राई होगा, रेनफॉल कम होगा, वहां पे छोटे प्लांट्स होंगे. सो ये चीज आपकी चलती रहती है. जैसे डिजर्ट्स में क्या होते हैं? आपको श्रब्स एंड स्क्रब्स मिलते हैं, थोड़े कम 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 कम, क्योंकि उनको इतने रिसोर्सेज ही नहीं मिलते. डिजर्ट में जो कैक्टस होता है, वो बहुत कम पानी में जी लेता है. ठीक है. बट जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो थ्राइव करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पानी चाहिए होता है. ठीक है. सो फॉरेस्ट को हमने दो तरीकों में क्लासिफाई करा. एवरग्रीन मतलब साल भर वो हरे ही रहते हैं, कोई ऐसा सीजन नहीं है एवरग्रीन फॉरेस्ट में कि सब जो है वो एक साथ शेड करें लीव्स को. बट डेसिडियस कौन से हो गए? जो सीजनली शेड करते हैं लीव्स को. ठीक है. सो ये क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए. हमें क्या समझ आया? वाइल्ड लाइफ हमें समझ आया, जानवर. वेजिटेशन हमें समझ आया कि पौधे. पौधे अब कैसे होते हैं? ये हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकता है, श्रब हो सकता है. फिर अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? एवरग्रीन. एवरग्रीन मतलब साल भर हरा रहता है. ठीक है. डेसीडियस मतलब कि वो सीजन टू सीजन जो है अपनी लीव्स को शेड करता है. फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो गई? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. ये किस पे है? लैटिट्यूड पे फोकस्ड है. टेम्परेट पे अलग टाइप के फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल में अलग होंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल में क्या है? सनलाइट ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है. टेम्परेट में क्या है? सनलाइट कम है, रेनफॉल भी कम है. ठीक है. अब हमारे को बात आती है कि हमें इनको कंजर्व कैसे करना चाहिए. ऑब्वियसली गाइस, जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, वो काफी थ्रेट फेस करता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टेंटली वांट टू एक्सपैंड, दे वांट टू डोमिनेट एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, दे वांट टू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट मोर बिल्डिंग्स, दे वांट टू किल ऑफ ऑल नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. So what can we do? How can we conserve natural vegetation and wildlife? That is the question that we are going to answer. Okay, so let's have a look. So changes in climate and human interference can cause loss of natural habitat for plants and animals. Obviously deforestation होती है, soil erosion होती है, constructional activities होती है, जंगलों में आगे लग जाती है. उसकी वजह से क्या होता है? ये फ्लोरा एंड फौना जो है अपना लाइफ लूज करता है. ठीक है. तो क्या होता है गाइस? काफी सारे जो ये स्पीशीज है ना, ये एक्सटेंट हो जाते हैं. जैसे डोडो. ठीक है. आदमियों ने, ह्यूमंस ने उसको इतना ज्यादा करा, वो करा, हंट करा या कुछ भी करा. डोडो इज जस्ट वन एग्जांपल. बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेचुरल रीजंस एंड इवन ह्यूमन मेड रिसोर्स रीजंस, we understand that this process of extinction of these resources gets catalyzed.
है ना। कैटलाइज क्या होता है, कैटलाइज मतलब कि एक्सटेंट हो रहे थे धीरे 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 धीरे, जैसे डायनासोर्स एक्सटेंट हुए वैसे ही कुछ प्लांट्स एक्सटेंट हो रहे हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं। बट ये कैटलाइज क्या कर देता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर आप ज्यादा पेड़ काटोगे तो ऑब्वियसली वेजिटेशन क्या होगी, कम होगी। वेजिटेशन कम होगी तो जो बर्ड्स वहां नेस्ट बना के रहती है उनका लाइवलीहुड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो गाइज ये सब चीजें होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब हम चाहते हैं कि एक्सटेंट ना होए, तो हमें इनको कंजर्व करना है। कंजर्व हम कैसे करते हैं, कंजर्व हम करते हैं नेशनल पार्क्स बना के, कंजर्व हम करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर रिजर्व्स को बना के, ठीक है। क्रीक्स को हम कंजर्व करते हैं, लीक्स को कंजर्व करते हैं, वेटलैंड को कंजर्व करते हैं ताकि ये डिप्लीट ना हो। काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स सोशल फॉरेस्ट्री पे, जैसे वाना महोत्सव आर एस्टैब्लिश्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। सो दिस इज वन मेजर ऑफ कंजर्वेशन। अनदर इज कि बच्चों को जो है वो क्या करवाते हैं, बर्ड वॉचिंग कराते हैं। विजिट कहाँ कराते हैं, नेचर कैंप्स में, सो दैट चिल्ड्रन, if young children are aware of how much they can do for the environment, how they can conserve the environment, then we are in a good place. We are starting off at a good space and a good space. If children understand the importance of not killing off like animals and plants, then we are going at a good pace. Obviously many countries have passed laws against trade. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal. So let's have a question answer round. Which of the following is not a factor of soil formation? Time, soil texture, organic matter. Answer is B, soil texture. So guys, in this chapter we understood that we don't have to do anything. It's a very easy chapter if you look at it from द लेंस दैट इट इज इन फैक्ट एन इजी चैप्टर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि लैंड के बारे में बताओ, तो लैंड के बारे में बताना है, फिर हमें बताना है कि क्या दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी, एंड देन वी हैव टू गिव अ सोल्यूशन। अब सॉइल के बारे में पूछेगा तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, वो कॉन्टोर फ्लोइंग के बारे में थोड़ा बता देना, थोड़ा मल्चिंग के बारे में बता देना, इंटरक्रॉपिंग के बारे में बता देना। दिक्कत तो हमें समझ आती है ना, क्या है दिक्कत, ये आती है हर केस में कि इंसान जो है वो अच्छा नहीं है। इंसान को क्या चाहिए कि हम एक्सपैंड करें, हर जगह से एक्सपैंड करें, और हम एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है। अब जब ये इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है तो ऑब्वियसली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ये सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या सोल्यूशन निकालें कि हम ये सफर ना करें बल्कि ये कंजर्व हुए। हमें कंजर्व तो समझ आता है ना क्यों करना है। कंजर्व हमें इसलिए करना है कि अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। उनको एक डेजर्ट मिलेगा विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी फ्यूचर, राइट। सो इफ आर अपकमिंग जनरेशन हैज नो वाटर, वैसे ही वाटर का सप्लाई कम हो रहा है, बट जो आने वाली जनरेशन के पास पानी नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे ना। So obviously we have to think about sustainable development, we have to think about their survival, and from that position, from that spot only can we develop. So the next is, which of the following is not in favor of conservation of nature? Switch off bulb when not in use, of course this is a good thing. Close off tap after using, this is also good thing. Dispose polybags after shopping is a bad thing. If you dispose it idhar udhar, then that is basically going to lead into पॉलीबैग्स गाइस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डीकम्पोज। इनको डीकम्पोज करना इजी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक सिंथेटिक चीज है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन, स्प्रिंग, ट्रॉपिकल, ये तो हम कर चुके हैं, ये रिपीट क्यों हो रहा है? Okay, yeah. Which of the countries is Tanzania situated? Tanzania situated in Africa. C is the right answer. Which of the following is the most important natural resource? Land, air, water. Land, air, water. Which one of these is the most important natural resource? Guys, we cannot rank resources on the basis of importance. All of them are equally important. So the option to this is going to be D, all of these. The uneven distribution of population in the world is due to the varied characteristic of land, climate, vegetation. Uneven distribution of population in the world is due to the varied character of it. It is A only, land and climate.
but also vegetation. So I think option D होना चाहिए all of these, but वो है नहीं. So option D होगा all of these. The example of common property is community land, individual building, both A and B, none of these. ये हमने करा है. इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कम्युनिटी लैंड. कॉमन प्रॉपर्टी मतलब आपके कम्युनिटी पार्क्स हो गए, आप फ्यूल एंड फॉडर फॉडर जो करते हो ग्रेजिंग के लिए वो हो गया, कुछ भी मतलब जो मल्टीपल लोग जिसको रिसोर्स को यूज करते हैं. ठीक है. Okay, let's move on, guys. Dash is the use of land for different purposes like agriculture, forestry, mining, construction, houses, industries. Is it land degradation, land use, land filling, land digging? Option B, land use. ये land use की definition है. Which of the following determine use of land? Soil and topography, climate and vegetation, availability of water. यूज ऑफ लैंड कौन सा डिटरमाइन करता है? गिव यू 5 seconds. थिंक गाइस, व्हाट कैन पॉसिबली बी द आंसर? ठीक है. ऑफ कोर्स इट इज ऑल ऑफ दीज. सारी चीजों से फर्क पड़ता है. अगर टोपोग्राफी अच्छी नहीं है तो उसको यूज कौन करेगा? अगर वहां बहुत ठंडा है तो वहां क्यों रहना चाहेगा? अगर वहां पानी नहीं है तो वहां इंसान लाइवलीहुड अपना कर ही नहीं सकता. ठीक है. Australia uses its largest portion of area for pastures, cropland, forests, other uses. Option A is right, pastures. ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना लार्जेस्ट पोर्शन किस लिए यूज करता है? पैस्चरिंग के लिए. Okay, guys, to all the people who sat till the end, thank you so much. My code is SWAS10. आप अपना स्कोर लिख सकते हो जो हमने क्विज कंडक्ट करी है उसका कमेंट में स्कोर लिखिए और मेरे को बताइए कि आप स्पेशल क्लासेस में मेरे से क्या देखना चाहते हैं. ठीक है. इसमें तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन 3 क्लासेस में हम लोग की कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं आज कल परसों. बट आप डेफिनेटली अगर आप कमेंट करेंगे नीचे और मेरे को बताएंगे कि आप स्पेशल क्लासेस में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपके डाउट्स क्या हैं, तो हम उसी के बेसिस पे मूव फॉरवर्ड करेंगे. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड that the end goal is for you, for me, the end goal is that my students get a 100% in all their papers. So whatever doubts you have, comment them below. We will organize special classes for you accordingly. And don't forget to use my code. My code is SWAS10. मेरे कोड को यूज करो और स्पेशल क्लासेस एक्टिवेट करो. अनअकैडमी पे मैं आती हूँ 7 और 8:30 बजे एंड सारे आपके डाउट्स हम लेंगे, केटर करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड वील मेक श्योर दैट योर जर्नी इज अ सक्सेस. So guys, thank you so much for listening to me today and do tune in for my classes and don't forget to use my code.